अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हिंदुस्तान ने आज सरकारी तौर पर पिछले 160 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस दर्ज किए हैं। वजारत सेहत के अदाद व शुमार बताते हैं, रोजाना हेल्थ बुलेटिन कहता है कि नए कोविड-19 इन्फेक्शन की तादाद 30,000 से नीचे चली गई है। हुकूमती अदाद व शुमार का कहना है कि भारत ने सोमवार को कोरोना वायरस के 25,072 नए केसेस दर्ज किए। फाल केसेस की तादाद में भी मुसलसल कमी देखी गई है। वजारत सेहत की ताज़ाकारी का कहना है कि भारत में इस वक्त 3,33,924 फाल केसेस हैं। ये तादाद गुज़िश्ता 155 दिनों में सबसे कम है। कौम की बाजियाबी की शरह भी बेहतर हुई है। 97.63% पर हिंदुस्तान मार्च 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा वसूली की शरह देखता है। एक अच्छी अलामत में पूरे हिंदुस्तान में बाजियाबी नए केसेस से बहुत ज़्यादा थी। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,157 मरीज कोविड से मुताल्लिका बीमारी से ठीक हुए हैं। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। बाराबंकी से मनोज शर्मा के मुताबिक बीजेपी कारकुन मनीष पॉल के घर पे हुआ बम विस्फोट। जराये के मुताबिक घर में बम अचानक से फट गया। बीजेपी कारकुन की हैसियत से इन्होंने कई मुजालिम किए थे और पहले ही अपने घर में बमों का जखीरा कर रखा था। इंतजामिया को कई बार आगाह करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर मिलते ही थाना बाराबंकी की पुलिस मौके पर पहुंची और मनीष पॉल और इसके दादा गणेश पॉल को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी पुलिस ने पूरे वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। আজকে দাসকিয়ালি গ্রামে কি ঘটনাটি ঘটেছে? আমি তো এই দুয়ারা সরকার ক্যাম্পে গোরান্ডি হাই স্কুল আছি। ঠিক আছে, আমি ফোন মারফত জানতে পারলাম যে মনেশ পালের বলে একজন দাসকিয়ালি একজন মানুষ আছে, তার একটা টালির চালা পুরো উড়ে গেছে, তার ওইখানে বোম মজুদ ছিল। আমরা বারবার এর আগে ভোটের আগে থেকে আমরা প্রশাসনকে এই ব্যাপারে বলেছিলাম যে ওই মনেশ পালের বাড়িতে, মনেশ পালের যে বিজেপি নেতা তার বাড়িতে বোম মজুদ আছে, এবং তখন থেকে ভোটের আগে থেকে সে ধমকি দিত আমাদের যে ছেলেদেরকে। আজকে তা প্রমাণ হলো এবং টোটাল ব্লাস্ট হয়েছে, ব্লাস্টে নিজের বাড়িটা গেছে। কিছু কোনো আহতর কোনো খবর পাচ্ছেন কি? এখন তো কথা আমি ডিটেলস জানি না, আমি তো এখানে ব্যস্ত আছি। কি কারণে আজকে মনে হচ্ছে যে রেখেছিল বাড়িতে মজুদ করেছিল, কি কারণে? মানে কি বলবো, ক্রিমিনাল টাইপের তো বটেই। হ্যাঁ, ও তো আগে অনেক গুণ ছিল, কিন্তু বিজেপি এখন ভোটের আগে থেকে বিজেপি করতে শুরু করেছিল, এবং বিজেপি করার ভোটের আগে থেকে এবার মানে খুব বাড়বাড়ন্ত যে সবাইকে শাসাচ্ছে। 2 তারিখের পর দেখছি, 2 তারিখের পর এলাকায় রয়েছে, যেমন এই ফার্স্ট ভার্সন বইতে আমরা প্রশাসনে জানিয়েছিলাম যে ওর বাড়িতে তখন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, কিছু নেই। এর আগে অনেকবার বিজেপি অনেক বাড়িতে আমরা ভোটের আগে থেকে বলে আসছি। এখন কি চাইছেন ওনার? যে প্রশাসন যেটা উচিত, যেভাবে ঘরে বোমা রেখেছিল, আইনানুগ যে ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে যাতে নেওয়া হয়। যদি না নেওয়া হয় তাহলে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। চল কি হয়েছিল বাড়িতে? এটা কি করে হলো? এটা এরকম কি করে? আমরা তো ওধারে থাকি, হঠাৎ আওয়াজ পেয়েছি, তারপর দেখতে এলাম। আমি তো মাঠ থেকে এসে পর দেখছি তা টালিমালি ভেঙে গেছে, একটু আওয়াজ। হ্যাঁ, তো কিসের মতন আওয়াজটা? কিসের মতন হলো? আওয়াজটা কিরকম হলো? আওয়াজ তো প্রচন্ড ফটফট করে যেমন আওয়াজ হয়, হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশি আওয়াজ। কি মনে হচ্ছে? কি ছিল বাড়িতে? কি মনে হচ্ছে? কি ছিল বাড়িতে? বাড়িতে কি করে এটা হলো? কি করে আমরা কি করে জানবো? আমরা ওধারে থাকি তো। একজন ওখানে বললাম মাঝে চাপা দুজনকে।
একদম আমি নিজেও বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী ছিলাম, আমি নিজেও লড়াই করেছি। আমার সাথে যারা ঘুরেছে, যারা পদে ছিল, পোর্টফোলিওতে ছিল, তারা দেওয়ালের উপর চেপেছিল। এদিকে আমি অলরেডি একজনকে করে দিয়েছি, পদ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছি অলরেডি। মানে যুবর দায়িত্বে ছিল, গোটা দিন আমার সাথে ঘুরছিল, রাত্রেবেলা বিজেপির সাথে ছিল। আমার কাছে ভিডিও ক্লিপ আছে, আমাকে ভিডিও ক্লিপ দিয়েছে, আমি তার সাথে সাথে সাসপেন্ড করেছি, ওকে বার করেছি পার্টির থেকেও। মানে পার্টির দায়িত্বে ছিল, পার্টির পাওয়ারে ছিল, প্রশাসনিক পাওয়ারে ছিল, তাকে ইস্তফা দেওয়া হয়েছে। ঠিক এই পদক্ষেপ কি অন্যান্যদের ক্ষেত্রে হবে? 100% হবে, 100% হওয়া উচিত এবং করবো আমি। কারণ ওইভাবে রাখা উচিত নয়। পার্টিতে যারা থাকবে, দিদিকে যারা ভালোবাসেন, মন দিয়ে থাকুন তারা। অন্তর্ঘাতের সঙ্গে জড়িত আছে এরকম কতজন আছে মোটামুটি চিহ্নিত করা গেছে? আমি যেহেতু বারাবণীতে, আমার অলরেডি যাদেরকে চিহ্নিত করেছিলাম, যাদের ভিডিও ক্লিপ পেয়েছি, যাদের সব কিছু রিপোর্ট পেয়েছি, আমি অলরেডি অ্যাকশন নিয়েছি আমার কাছে। অন্য জায়গাগুলো লোকাল এমএলএ যারা হেরেছে বা যারা জিতেছে, তাদের কাছে আমরা রিপোর্ট নেব। অলরেডি আমাদের 4 দিন হলো আমাদের কমিটি হয়েছে, নতুন কমিটি এসছে। তো আগামী দিনে আমরা রিপোর্টগুলো নিয়ে আমরা করবো, কারণ আমরা এটা বরদাস্ত করবো না। কারণ তাদেরকে বাদ দিয়ে যখন জিতেছি, তাদেরকে একদমই বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। आसिफ अंसारी उर्फ छोटू, मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ अहमद, दानिश अंसारी, मोहम्मद तौसीफ उर्फ राहुल, मोहम्मद अकबर उर्फ जानी और 5 नौजवानों को नियामतपुर इसको रोड पर एक तामीराती फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे 21 किलो भांग बरामद किया। पुलिस ने थाना कुल्टी के इलाके नियामतपुर में जेर तामीर फ्लैट से भांग की एक बड़ी मकदार बरामद की है। पुलिस ने आसिफ अंसारी उर्फ छोटू, मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ अहमद, दानिश अंसारी, मोहम्मद तौसीफ उर्फ राहुल, मोहम्मद अकबर उर्फ जानी 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे 21 किलो भांग बरामद की है। रेड लाइट एरिया लच्छीपुर में पुलिस ने गौतम विश्वास के लच्छीपुर सिमत में वाक़या मकान को सील कर दिया। एक नाबालिग के साथ जिनसी तजारत के मामले में मफरूर है। गब्बर और गौतम के दरमियान मोबाइल गुफ्तगू की ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उसके बाद गौतम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद एक पुलिस अफसर को लाइन पर लगा दिया गया। ये भी मालूम किया जा रहा है कि आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट में किस पुलिस अफसर की गलती की वजह से गौतम लच्छीपुर रेड लाइट मफरूर होने में कामयाब रहा। आखिर इसे कैसे पता चला कि अगर वो पकड़ा गया तो वो तवील अरसे तक जेल जाएगा। कहा जाता है कि गौतम इस वक्त मुंबई में है, लेकिन वो वहाँ से फरार भी हो सकता है। पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि गौतम विश्वास और इसके खानदान के पास पासपोर्ट है या नहीं। अगर इसके नाम पर पासपोर्ट है तो गौतम की तफसीलात मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर भेजी जाएगी। बताया जाता है कि लच्छीपुर रेड लाइट गौतम के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। इसमें कुछ किराएदार हैं, इनके घर को कुछ नहीं किया गया। इस घर में गौतम के कुछ रिश्तेदार थे जिन्हें छापे के बारे में मालूम हुआ और वो घर छोड़कर चले गए। अंडाल से राबी पासवान के मुताबिक अंडाल के इलाके मायरा कौलवरी में तकरीबन 1000 लोग एक अरसे से ECL बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकामी रिहायशी दिनेश मोहत कारूमिया ने बताया कि वो एक अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक ECL इलाके के मकैनों को पीने का पानी और बिजली फराहम करेगा। मुकामी लोगों की जानिब से तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों की तंजीम मायरा कोलवरी के तृणमूल ब्रांच सेक्रेटरी सुब्रत दास ने कहा कि इलाके के लोगों को अब तक ECL से पानी और बिजली मिलने का तरीका बरकरार रखना चाहिए, वरना बदअमनी बढ़ जाएगी। लिहाजा इलाके में अमन को बरकरार रखने के लिए मायरा कोलवरी की निचली सतह की जानिब से ECL को एक मेमोरेंडम दिया गया। ECL के अमले के अलावा बहुत से लोग ECL की जगह ECL के इलाके में रह रहे हैं।
लेकिन हाल ही में ईसीएल ने गैर कानूनी तौर पर ईसीएल से मुंसलिक अफराद को मुनक़ता करने की पहल की है। इसी तरह सोमवार के रोज ईसीएल ने इन लोगों के राब्ता मुनक़ता करने के लिए इकदाम किए जिन्होंने अंडाल के मायरा कुलवरी इलाके में गैर कानूनी तौर पर इस्राइली बिजली से राब्ता कायम किया था। जब ईसीएल के हुकाम बिजली मुनक़ता करने आए तो इन्हें मुकामी लोगों ने रोक दिया। मुकामी लोगों की तरफ से रुकावट का सामना करने के बाद ईसीएल हुकाम बिजली मुनक़ता करने के लिए वापस आई। ईसीएल ने तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। धनबाद से जुबैर आलम के मुताबिक बक्सूमा गोविंदपुर में बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर में आग लगने से कंसारी मंडल जी का घर मुकम्मल तौर पर जल गया। कपड़े, मोबाइल, फर्नीचर और 30,000 रुपए भी जल गए। वाक़े के बारे में मालूमात गोविंदपुर थाना इंचार्ज को दी गई और इंडियन गैस एजेंसी को भी दी गई। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक इन इलाके के पंचायत टैक्स कलेक्टर सलानपुर जमुड़िया रानीगंज टैक्स कलेक्टर ने आज आसनसोल में डीपीओ ऑफिस में डिपुटेशन दिया। পশ্চিম বর্ধমানে কর আদায়কারীদের 13 দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন। তার মুখ্য দাবিগুলো কি? মুখ্য দাবি হচ্ছে আমাদের বর্তমানে আমাদের যে ভাতা দেওয়া হয় 750 টাকা, সেটাকে 10,000 টাকা করতে হবে। পুনর্নবীকরণ প্রথা বন্ধ করতে হবে। এককালীন 5 লক্ষ টাকা অনুদান দিতে হবে সরকারকে। আর 60% যেটা 33% যেটা ট্যাক্স কালেক্টর পদে জিপি কর্মীদের নিয়োগ করা হয় সেইটা চালু করতে হবে। আচ্ছা, 6 বছর যেটা ছিল আমাদের মেয়াদ আছে সেটা 3 বছর করতে হবে। এগুলো হচ্ছে মুখ্য। আপনাদের ভাতা মাসিক কত? মাসিক ভাতা হচ্ছে 600 টাকা দেয় আমাদেরকে ব্লক অফিস আর 150 টাকা দেয় জিপি অফিস। সেটা কত করে দাবি করছিল? 10,000 টাকা। কার কাছে ডিপুটেশন দিলেন? ডিপিআরডি অফিস, ডিপিআরডি স্যারের কাছে। আপনার নাম? রাহুল দাস। আমরা আজকে ডিপিআরডিও স্যারের কাছে ডেপুটেশন জমা করলাম 13টা দাবি নিয়ে। ডিপিআরডিও স্যার আমাদেরকে বলেছেন তিনি যতগুলো পারবেন তার হাতে যতগুলো আছে তিনি চেষ্টা করবেন ভেবে রাখার, বাকিগুলো উনি পাঠাবেন উপরে, তারপর দেখা যাক। উনি আশ্বস্ত করেছেন? উনি আশ্বস্ত করেছেন ওনার হাতে যেগুলো রয়েছে সেগুলো উনি পূরণ করবেন। এই যদি আপনাদের এই দাবিগুলো না মানা হয় তাহলে কি যারা আন্দোলনের পথে আপনারা যাবেন? একদম আন্দোলনের পথে অবশ্যই যাবো এবং আমরা উপরি স্তর যেখানে আছে সেখানে আমাদেরকে যেতে বাধ্য হবো। আপনার নাম? আমার নাম রিঞ্জন ঘোষ। आसनसोल में INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक की एजाजी तकरीब का एहतमाम आसनसोल सिटी बस स्टैंड पर संजय सिंह की क़ियादत में किया गया। इस मौके पर साबिक काउंसलर गुरुदास चैटर्जी, रॉकेट बंदो पांडे, बबलू यादव, संजीत मुखर्जी, राजन मुखर्जी, सरोज घोष वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि आप सबकी मोहब्बत और दीदी के आशीर्वाद की वजह से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। हम पार्टी की तरफ से इन्हें दी गई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। तरजीह ये होगी कि शिल्पांचल के सनती अदारों में काम करने वाले मजदूरों को इनके हुकूक मिले। बनपुर से अंकित श्रीवास्तव के मुताबिक बनपुर में साइनी घोष के लिए एक तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो हमारे TMC की एक यूथ आइकॉन है। इस प्रोग्राम का इनेकाद 22 अगस्त की शाम बारी मैदान में किया गया। यहाँ डिग्निटरीज के तौर पर शमा नाज, वार्ड महिला कमेटी प्रेसिडेंट और सोशल वर्कर ऑफ द असेंबली सैयद इकबाल, पूर्णेंदु चौधरी, उत्पल सेन और बहुत सारे मुअज्जिन मौजूद थे। खसूसी ट्रेनों के स्टॉपेज की तौसी आसनसोल में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 03105, 03106 सियालदा बलिया सियालदा स्पेशल अंडाल और 03045, 03046 हावड़ा रामपुर हाट हावड़ा स्पेशल
मनकर स्टेशन और 03029 हावड़ा मोकामा स्पेशल मनकर स्टेशन पर ट्रेनें अगले मशवरे तक जारी रहेंगी। मगरबी बर्दवान जिला के आसनसोल में चलती पुलिस गाड़ी में आग लग गई। एक पुलिस वैन में सोमवार को अचानक आग लग गई। गाड़ी का एक पहिया सड़क के किनारे नाले के सुराख में फंस गया। मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाया। इत्तला मिलते ही फायर इंजन मौके पर पहुंच गई। मुकामी लोगों ने आग बुझाई। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया। फायर फाइटर्स का इब्तदाई ख्याल ये था कि आग बैटरी से शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इनका कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। सर सैयद एकेडमी का इफ्तिताह यहाँ रेल पर आसनसोल के फैज़-आम मस्तूरात में हुआ। अब नर्सरी से क्लास 5 तक पढ़ाई होगी। डिग्निटरीज के तौर पर यहाँ मेहमान खुसूसी सुबोध गोराई नॉर्थ पुलिस स्टेशन के अफसर, खतीब इमाम मस्जिद बोतल मस्जिद के ताहिर राशिद, मोहम्मद रिजवान अहमद आसनसोल अड्डा हाई स्कूल के हेडमास्टर, हाजी कदम रसूल स्कूल के मास्टर अली, मास्टर MD इम्तियाज़ अंसारी, अब्दुल मुनाफ इलियासी, मशहूर शायर MD इमरान वगैरह मौजूद थे। इल्हाज अहले हसन ने प्रोग्राम की सदारत की। मास्टर MD अख्तर हुसैन और साबिक काउंसलर शाहिना परवीन ने इस बड़ी कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। संगतोड़िया में हुकूमत मगरबी बंगाल की तरफ से मुनक़दा दुआरे सरकार मुहिम के तहत लक्ष्मी भंडार स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए नितोड़िया थाना इलाके में परबलिया कोलवरी हिंदी हाई स्कूल और सालतोड़िया कोलवरी बंगला हाई स्कूल में लगाए गए कैंप में बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ। मालूमात के मुताबिक रियासती हुकूमत के लक्ष्मी भंडार योगा के बारे में ख़ातीन में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। कोई भी औरत इस स्कीम से फ़ायदा उठाने से अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहती। सोमवार को मुनक़दा कैंप में लक्ष्मी भंडार योजना से फ़ायदा उठाने के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा हुई। लक्ष्मी भंडार योजना से फ़ायदा उठाने के लिए जाने वाली ख़वातीन को दरख्वास्त फॉर्म जमा करने और इसे पुर करने के बाद जमा कराने के लिए दोबारा कतार में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा मसला ख़वातीन का फॉर्म भरना है, जबकि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद ख़वातीन को भी किसी दूसरे बशऊर शख्स की तरफ से फॉर्म भरना मुश्किल हो गया है। काबिल ज़िक्र है कि ST SC और OBC के लिए 1000 रुपये और आम ख़वातीन के लिए 500 रुपये हर माह के बैंक अकाउंट में जाएंगे। मज़कूरा कैंपों में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1000 से ज़ायद फॉर्म भर गए हैं। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव योर क्रेडिट। अपने बेहतरीन काम को कभी ना रोकें क्योंकि कोई आपको क्रेडिट नहीं देता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.